Welcome class 12. Today we are going to discuss the topic trade credit. Now here the trade credit means facility of the deferred payment. Means it refers to the facility or credit extended by one business firm to the another business firm. Okay, because guys, any business organization they cannot run without the credit. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिना क्रेडिट के रन नहीं कर सकता बिकॉज इट इज़ वी कैन से इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेबल. हम इसको रोक नहीं सकते. ओके, इट इज़ नॉट अनअवॉइडेड. ओके, सो मतलब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सो देयर विल बी क्रेडिट. वहाँ पे क्रेडिट होगा ही. सो इट इज़ द इनवेटिबल इन द प्रेजेंट कंपटीशन बिजनेस वर्ल्ड. जो आज का जो बिजनेस वर्ल्ड चल रहा है कंपटीशन का, उसमें ये इनएविटेबल है बिकॉज विदाउट द क्रेडिट नो वन बिजनेस कैन रन. सो लेट्स सी the what are the means of the trade credit. Trade credit is to in order to increase the turnover or sales of the बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन. किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स बढ़ाने के लिए या फिर उसका टर्नओवर इंक्रीज करने के लिए एक छोटी सा फैसिलिटी होता है. सो हियर द many manufacturers, wholesaler or suppliers, they supply or sell their goods. So they supply their goods, they sell their goods, commodities in order to increase turnover. Okay, now so they supply their sales goods, services, raw materials on credit to their customers. वो अपने कस्टमर्स को जो भी गुड्स सेल करते हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल सेल्स करते हैं, वो ऑन क्रेडिट पे उन्हें सेल करते हैं. मीन्स दे अलाउ देम टू सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फॉर मेकिंग पेमेंट. मीन्स वो अपने जो भी उनके कस्टमर्स हो उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि इफ़ दे आर अनएबल टू पे द कैश on the time of the sales, so they can take the some period and can pay amount after that period. So here the manufacturer, wholesaler, supplier, they allow their customer a certain period of time for making payment. That is a trade credit. Okay, now let's see what has written in your textbook. So see the first line. No business can be run without credit. Credit is the soul of the business. Yes, no one business can run without the credit. बिना क्रेडिट के कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकता. क्रेडिट इज द सोल ऑफ द बिजनेस. वो बिजनेस की आत्मा. बिकॉज बिना क्रेडिट के, बिना उधार के, बिना हम डिले पेमेंट किए, बिकॉज किसी के पास भी एट द टाइम ऑफ द सेल उतना कैश नहीं होता. So they sell their business, they trade their business on the basis of trade credit. Now trade credit financing is major source of short term financing. जो ट्रेड क्रेडिट फाइनेंसिंग है, इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर सोर्स है. नाउ हियर द मैन्युफैक्चरर, wholesaler and suppliers of goods or material all are called trade credit. यहाँ पे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, सप्लायर, होलसेलर हैं और जो भी अनदर गुड्स के जो सप्लायर्स हैं, ओके, दे आर कॉल्ड द ट्रेड क्रेडिटर बिकॉज दे प्रोवाइड द क्रेडिट. वो एक शॉर्ट पीरियड देते हैं क्या करने के लिए, जो भी सेल पेमेंट है उसको डिफर्ड करने के लिए या फिर फ्यूचर पेमेंट करने के लिए. सो दैट्स व्हाई दे कॉल द ट्रेड क्रेडिटर. Now they sell tangible goods to the other business concern on the basis of deferred payments. Yes, they sell their goods. जो भी tangible goods हैं उनको दूसरे business organization को sell करते हैं on the basis of deferred payment. Deferred payment means in future payment. Okay. So the credit sales of granting credit to customers is inevitable in the present competitive business world. It is considered as short-term financing of business fund. Okay, let's see next line. They sell tangible goods to other business concern on the basis of deferred payments, that is future payment. Credit is extended by this business concern with an intention to increase their sales because they provide
or they allow them to pay their amount on a फ्यूचर बेसिस, मतलब फ्यूचर में वो क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट का. सो उनकी जो फैसिलिटी है वो सिर्फ इतनी है कि दे वांट टू ट्राई टू एक्सटेंड देयर सेल्स, वो अपने सेल्स को बस इंक्रीज करना चाहते हैं. ओके, सो द बिजनेस फ्रॉम एक्सटेंड क्रेडिट आल्सो बिकॉज ऑफ कस्टम्स दैट हैज़ बीन बिल्ड अप ओवर टाइम. ना ट्रेड क्रेडिट इज़ नॉट अ कैश लोन. ट्रेड क्रेडिट एक कोई भी कैश लोन नहीं है. इट रिजल्ट फ्रॉम अ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच हैज़ टू बी पेड एट अ फ्यूचर डेट आफ्टर द सेल्स टेक प्लेस. ये एक तरह की ऐसी फैसिलिटी है कि इसमें क्या होता है कि जब भी कोई भी गुड्स ऑन द क्रेडिट बेसिस पे सेल होता है, कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज, इफ इट इज़ सेल ऑन अ क्रेडिट बेसिस, सो इट हैज़ टू बी पेड एट अ फ्यूचर डेट आफ्टर द सेल टेक प्लेस. मतलब जब सेल हो जाता है, सपोज़ यहाँ पे सप्लायर ने कोई भी गुड्स अपने कस्टमर्स को सप्लाई किया है, सो जब अपने कस्टमर को सप्लाई करेगा और वो कस्टमर जब उस गुड्स को सेल करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, उसको पेमेंट कर देगा. सो हियर द credit sales of goods or services, it has to be paid at a future date after the sales take place. In other words, when goods are delivered by supplier to a customer and the payment is made after the some time, that is called a trade credit. Okay, means the trade credit refers to the facility or credit extended by one business firm to the another business firm, and it can occur explicitly through the issue of bills of exchange, or it may arise from delay of receipt and payment from goods sold or services performed. मतलब यहाँ पे जो सप्लायर है वो क्या कर सकता है, वो बिल्स ऑफ एक्शन की फैसिलिटी भी दे सकता है कि आफ्टर पीरियड ऑफ 1 मंथ या फिर आफ्टर पीरियड ऑफ 1.5 मंथ, जो भी उनका कंसिडरेशन, सेल्स कंसिडरेशन या फिर परचेज कंसिडरेशन रहेगा, उसके बेसिस पे दे कैन अलाउ देम टाइम for the payment of sales. So here the supplier also the issue the bills of exchange or from the delay of receipt and payment for goods sold or services performed. तो यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे सकता है उतने पीरियड के लिए, और उसके बाद अगर उसमें भी कोई डिले होता है तो उसके ऊपर भी वो क्या कर सकता है, अपनी सर्विसेज को परफॉर्म कर सकता है, आगे का जो भी पीरियड है उसको क्या कर सकता है, वो एक्सटेंड कर सकता है. Okay, now credit is given or extended with an ultimate motive of increasing turnover or sales. जो भी सेल्स क्रेडिट दिया जाता है, ट्रेड क्रेडिट दिया जाता है, ये सिर्फ इसलिए होता है कि सप्लायर्स के जो गुड्स हो उनका टर्नओवर बढ़े, उनका सेल्स बढ़े ना. जो ट्रेड क्रेडिट गुड्स है, ओके, और सर्विसेज, दे आर सप्लाइड और सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट. जो भी ट्रेड क्रेडिट्स गुड्स और सर्विसेज होती हैं, दे आर ओनली सप्लाइड और सोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स और फ्यूचर पेमेंट, मतलब फ्यूचर पेमेंट पे ही होती है. एट द टाइम ऑफ द कैश वो पैसा उनको नहीं मिलता, उनको पैसा कब मिलेगा, इन अ फ्यूचर डेट. सो ट्रेड क्रेडिट इज़ नॉट अ कैश लोन, कोई भी कैश लोन नहीं है. इट इज़ फैसिलिटी गिवन बाय वन ट्रेडर टू द अनदर ट्रेडर टू डिले द पेमेंट. यहाँ पे एक ट्रेडर को क्या होता है, एक ट्रेडर क्या करता है, दूसरे ट्रेडर को कुछ टाइम दे देता है टू फॉर द पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ द सेल. जो भी उसने गुड्स सेल किया है उसका जो अमाउंट है वो इन फ्यूचर डेट वो पे करे. तो यहाँ पे कोई किसी को कैश लोन नहीं दे रहा है, ओके, मतलब पैसे का, मनी का लोन नहीं दे रहा है. यहाँ पे बस ट्रेड क्रेडिट किया था, मतलब जो व्यापार, जो बिजनेस है उसमें थोड़ा सा टाइम दे दिया जा रहा है टू डिले द पेमेंट जो एट द टाइम ऑफ कैश होने वाली थी वो अब 1 महीने बाद होगी, या फिर जो भी उनका कंसिडरेशन टाइम रहेगा उसके बाद होगी. ओके, सो ये क्यों किया जाता है कि जब कैश सेल्स हो, ओके, जब कैश सेल्स नहीं हो रहा है, तो जब सप्लायर गुड्स सेल कर रहा है कस्टमर को, और कस्टमर जो रिटेलर है वो जो अपने गुड्स को सेल कर लेगा, उसके बाद जब पैसे आ जाएंगे, सो एट दैट टाइम ही कैन repay the amount of sales or purchase. Okay, so here the trade credit is not a cash loan, it is a facility which is given by one trader to the another trader to delay the payment. Okay, now trade creditor कौन कौन हो सकते हैं ट्रेड क्रेडिटर? द ट्रेड क्रेडिटर मे बी द मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और सप्लायर. ओके,
ट्रेड क्रेडिटर कौन कौन हो सकते हैं? होलसेलर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर होता है, सप्लायर हो सकते हैं, एंड दे यूजुअली अलाउ द 30 days और मोर टू देयर कस्टमर फॉर द मेकिंग पेमेंट। मतलब वो यहाँ पर अपने सप्लायर को सॉरी अपने कस्टमर्स को या फिर जो उनके रिटेलर्स हैं उनको 30 days का या फिर उससे ज़्यादा का टाइम पीरियड दे सकते हैं फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ बिल अमाउंट और purchase amount. Okay, and they also offer the cash discount if their customers make payment of bills before the expiry period of bill. Here the mm, here the creditor जो भी creditor है, here the creditors like manufacturer, wholesaler, supplier, they can also give the cash discount. वो यहाँ पे cash discount भी offer करते हैं if retailer or customer make payment of bill बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द बिल। जो बिल का डेट है उसके पहले, उनके एक्सपायर होने के पहले अगर उसने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, लाइक इफ़ द मेक पेमेंट ऑफ बिल विद इन अ शॉर्ट पीरियड लाइक 10 days और 15 days के अंदर ही उसने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है बिल का, सो ही कैन आल्सो गेट द कैश डिस्काउंट। उसको कैश डिस्काउंट भी मिल सकता है। ओके ना, सो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो ट्रेड क्रेडिटर होता है वो कौन कौन हो सकते हैं और उनका जो बिल जो ट्रेड क्रेडिट का जो पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा दिन का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। ओके नाउ सी द थर्ड पैराग्राफ। ट्रेड क्रेडिट इज नॉट अ कैश, इट रिजल्ट फ्रॉम द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। ये जो क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स है उसका एक रिजल्ट है, यहाँ पे कोई कैश लोन नहीं होता है। इट हैज़ टू बी पेड एट अ फ्यूचर डेट आफ्टर द सेल्स चेक पेज। ये फ्यूचर डेट में होता है जब कस्टमर उसको सेल कर लेगा या रिटेलर उसको सेल कर लेगा, तब वो पैसे इन फ्यूचर डेट में कर सकता है इन अ रिफंड पेमेंट। ओके, in other words, when a goods are delivered by supplier to a customer and payment is made after some time, it is called as the trade credit। तो यहाँ पे जो भी goods डिलीवर्ड होता है सप्लायर के थ्रू टू द कस्टमर, और पेमेंट कब होगा, और पेमेंट जब आफ्टर सम टाइम होगा या फिर इन फ्यूचर टाइम में होगा, फ्यूचर पीरियड में होगा, दैट इज ओनली नोन एज द ट्रेड क्रेडिट। ओके नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। इन डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड दिस काइंड्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस। आज का जो डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड है इसमें क्रेडिट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, बिकॉज मतलब जो क्रेडिट सेलिंग है और ग्रांटिंग क्रेडिट सेल्स है टू कस्टमर, इट इज़ इनवेटेबल इन द प्रेजेंट कंपटीशन बिजनेस वर्ल्ड। आज के बिजनेस वर्ल्ड में आज का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें ये इनएविटेबल है। इनएविटेबल मीन्स इट इज़ कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और कैन नॉट बी अवॉइडेड। हम क्रेडिट को तो अवॉइड कर ही नहीं सकते, बिकॉज एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रन विदाउट द credit। Okay, so it is the soul of the business that has written here। Okay, so the small retailer to large extent rely on obtaining trade credit from supplier। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे रिटेलर है उनको बहुत रिलाय मिल जाता है फ्रॉम देयर सप्लायर इफ़ दे विल गेट द ट्रेड क्रेडिट। अगर उनको ट्रेड क्रेडिट मिलता है सो दे विल गेट मतलब ग्रेट रिलाय। ओके, from the supplier, so it is an easy kinds of credit which can be obtained without signing any debt instrument। कोई भी debt instrument साइन किए बिना बहुत ही easily ये मिल जाता है। ओके मीन्स इट इज़ वेरी लीनियंट, ये बहुत ही लीनियंट प्रोसेस होता है। यहाँ पे कोई भी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ओके, एंड इट इज़ रेडीली अवेलेबल, मतलब मार्केट में एकदम रेडी होता है ये। इट इज़ रेडीली अवेलेबल इफ़ गुड्स आर सर्विसेज आर परचेज ऑन क्रेडिट इन बल्क। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हम गुड्स को परचेस कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, सो इट इज़ रेडीली अवेलेबल इन अ मार्केट। ओके, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है विदाउट, इट इज़ ऑप्टेन विदाउट मेकिंग एनी एग्रीमेंट और साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट। बिना किसी डॉक्यूमेंट को साइन किए, बिना कोई एग्रीमेंट बनाए, बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाए, इट कैन ईजिली ऑप्टेन। ओके, नाउ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ट्रेड क्रेडिट आर वेरी लीनियंट। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है ट्रेड क्रेडिट के बहुत ही लीनियंट, मतलब बहुत ही सिंपल। ओके, नाउ it is easy kinds of credit of which is obtained without signing any debt instrument। कोई भी एग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं, कोई भी डीड साइन करने की जरूरत नहीं, कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड इट इज़ रेडीली अवेलेबल एंड इट इज़ चीप मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। यस, बहुत ही चीप मेथड है, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इट कैन बी कंसिडर एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस।
Okay. And नेक्स्ट सप्लायर सेल्स गुड्स एंड विलिंगली अलाउ 30 days और मोर. यहाँ पे सप्लायर क्या करता है, द सप्लायर यूजली अलाउ द 30 days और मोर टू देयर कस्टमर फॉर द मेकिंग पेमेंट ऑफ बिल्स ऑफ अमाउंट. ओके. So here the supplier sells goods and willingly allow 30 days or more for the bill to be paid, and they even offer discount. Yes, here the supplier also offer the cash discounts if their customer make payment of bill amount within a short period, like 10 days or 15 days from the date of delivery of goods. Okay, so here the supplier can also offer discounts if bills are cleared, if or bills amount uh, paid, okay, within a short period, like 10 days or 15 days, etc. सो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट आर नॉट रिजिड. जो ट्रेड क्रेडिट जो टर्म्स हैं ये रिजिड नहीं है. इट इज़ वेरी लीनियंट, इट इज़ वेरी सिंपल, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड it is readily available if goods or services are purchased on the credit in bulk. And the trade credit offers the lots of the facilities for the retailer or small retailer. Okay, so trade credit is considered as the cheapest and easiest method of raising short term finance, and trade credit can be obtained without making any agreement or signing any document, or without signing any debt instrument. Okay, so guys, today we have learned the trade credit. In the next video we will come with the new topic. आज के लिए इतना ही. Goodbye.